ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਬੇਟੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੈ ਔਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੂੰ। ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਆਏ, ਹਨਾ? ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੋੜ ਹੰਡਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੰਡਾਉਣਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਨੇ ਵਿਛੜਨਾ ਹਾਂ ਵਿਛੜਨਾ ਹੈ। ਵਿਛੜਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਨ ਨੂੰ? ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨੂੰਹਾਂ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੰਪਲ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੀਤੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਾਂ ਲਗਾਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨੂੰ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ? ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਟੁਕੜਾ ਪਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵੇਗੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਹੂੰ। ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਹੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨੌਕਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਹੂੰ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੰਮੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੈ ਹੂੰ। ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੂੰ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਮੈਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਨਾਲ ਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਹੂੰ। ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੂੰ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅੜਕ ਹੋਣ, ਹੂੰ। मेरी ये सलाह है। बाकी तो हर एक दी अपनी अपनी समझ है। हम्म। लगी कि मैं तो जॉब करनी है, अभी मैंने हम्म। दुनिया तो देखी ही नहीं है, हम्म। क्योंकि वो सबसे छोटी थी घर में और उसकी कज़न सब बड़ी बड़ी थी। हम्म। तो वो सारी मुझे कहें, कोई तो मामी जी और कोई चाची जी क्यों कर रहे हो इतनी छोटी की? मैंने कहा नहीं बेटा मेरी तो यही बड़ी है, यही छोटी है। इसकी मेरी 17 की हुई तो 22 तो बहुत बड़ी उम्र, तो हम्म। करते ही इसको पढ़ाई भी पूरी हुई, MBA कर लिया इसने। हाँ। कि नहीं इसको अभी 1-2 साल रहने दो रहने दो। लड़का मुझे पसंद आया, देखा, बात करी मैंने कहा बेटा कैसे कैसे क्या है वहाँ पे तुझ रह रहा है अमेरिका में? उसने कहा कि मेरा खुद का घर तो नहीं है हम्म। और पुरानी गाड़ी है सेकंड हैंड, और लेकिन मैं कर लूँगा, ठीक है। मैंने कहा बस बेटा देखने में बहुत ठीक था, साफ बात बोल रहा है। मैंने कहा इससे और फालतू क्या चाहिए बोलो? मेहनत करेंगे बेटा बेटी दोनों करेंगे तो कल को बल्ले बल्ले क्या बात है। तो होगी बल्ले बल्ले फिर। बिल्कुल बल्ले बल्ले। अब 4 तारीख को आएगी, 25 साल उसकी शादी को, 25 से ज़्यादा ही हो गए, 30-32 हो गए मेरे ख्याल में। बहुत खुश है। अभी ये कहती है कि माँ बाप जो रिश्ता ढूंढते हैं शादी वहीं करो और कहीं करो ही मत। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਂ ਵੈਸੇ ਡਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਤਾਂ कर रही हूँ? हाँ मेरे को डर लगा, और मैंने उसको कह के उसको हमने उसकी एरोप्लेन की टिकट दे के भेजा था कि देख बेटे हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया, अगर किसी वजह से ये कोई इसमें तुम्हें ऐब लगे कि भी इसमें ये खराबी है, ये खराबी है, ये खराबी है, ड्रग्स है, वोमनाइजिंग है, कुछ और है, ऐसा बिल्कुल मत पूछना और बिल्कुल ये संकोच ना करना। अपना हवाई जहाज़ की टिकट है, अटैची उठाओ और अपना घर वापस। अच्छा। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें किसी से सुनने की, कहने की, ठीक है ना? उसको बोलो जी हो गया, बाय बाय, नाउ आई एम गोइंग। तो ये उसका, और वाकई बाकी घर यही है वैसे तेरा हमारी तरफ से।
अब इसको तुमने जचाना और इसको तुमने बसाना और यहाँ पे ये धौंस नहीं दिखाने कि तू बहुत बड़े परिवार से है, इसलिए वो डंडा घुमाने वाली बात नहीं करनी बेटे। नीचा झुक के इज्जत दोगी तो इज्जत मिलेगी, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। हाँ, तो वो चीज़ें उसने करी। तो अब कहती है कि मम्मी बहुत अच्छा हस्बैंड प्रूव हुआ, बहुत अच्छे बच्चे पाले हमने, तीनों के तीनों बच्चे मिलते हैं, बिल्कुल इंडिया जैसा उस तरह से रखते हैं, छुट्टी होती है तो भाग के आते हैं तीनों। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, दूसरा तीनों को ये बता रखा है कि शादी बहुत ज़रूरी है, उसको ये मत सोचना कि भी जो है ना ये तो लाइफ एंजॉय करने का वो है, नहीं बेटा शादी करो, क्योंकि जो भगवान ने बना के भेजा है, हम ये कहते हैं कि फिजिकल भी उसके साथ हो ईमानदारी से, अच्छा उसका, ठीक है ना, अपना लाइफ पार्टनर के साथ। यूँ नहीं है कि कुत्तों की तरह तुम कहीं भी बिखरते फिरो, वो अच्छा नहीं लगता, और वो तुमको अल्टीमेटली कहीं भी नहीं पहुंचाएगा लाइफ में। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। मैं कर लेती हूँ बेटा, सबसे कर लेती हूँ बात, बिल्कुल। और ये सारी लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं। तुम किसी को झूठे उसमें मत लटका के रखो, साफ बात करो भाई मैंने शादी करनी है या मैंने नहीं करनी। अगले से भी पूछो, हाँ भाई निभे तो करो, नहीं तो नहीं करो। और ये कोई वो नहीं है कि भी जट्टां दा ही मुंडा होना चाहिए, नहीं, कोई बेशक चाइनीज छोड़ देना भाई। क्यों ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ नहीं, ਕੀ वो ਕਾਰਨ है? थोड़े से क्रूड ज़्यादा हैं, ज़्यादा मनी माइंडेड, टू मच वो क्या कहते हैं मशीन टाइप दिमाग है उनकी, इमोशनल नहीं है वो लोग। ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਵਗੈਰਾ ਚਾਈਨਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ। अच्छा। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस यही के अंदर कि बहुत ही ज़्यादा अलूफ से, जैसे मतलब एक वो आपने एग्रीमेंट किया है तो एग्रीमेंट पे ही चलेंगे हम, यूँ नहीं है कि भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब इमोशंस ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ हाँ घोट के ਇਗਨੋਰ रखते हैं, ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ इग्नोर ਹमेशा। करते हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई चाइनीज़ नहीं होने चाहिए, और बाकी तुम्हारा वाइट हो जाएं, कोई दूसरे साउथ के अपने हो जाएं, और इधर के जट्टों के हो जाएं तो ठीक है, कोई भी हो जाए, तो लेकिन ये नहीं होने चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ। हाँ, तो ਸੋ ठीक है। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉੱਥੇ हाँ, ਓਪਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ बिल्कुल, ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ बिल्कुल ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं है, बिल्कुल। तो वही है, हमारे बच्चे जो हैं तो मैं पूछती हूँ जैसे कि भी हाँ भाई कोई पसंद आया, अभी तक कोई किया नहीं नानी, अभी तो नहीं, आपको पता सबसे पहले लगेगा, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, सोच के करना, जो भी तुम्हें पसंद आए माँ बाप से मिलाना, उसके पेरेंट्स को मिलाना, देखें हम जो भी कोई हो, उसके बाद फैसला करेंगे कि भी, क्योंकि कल को कोई भी प्रॉब्लम होती, बच्चे वो कहते हैं ना हम कर लेंगे, इट्स आवर लाइफ, वो सब गलत है, कहीं नहीं वो सॉल्व होती, वो इट्स आवर लाइफ जो है ਅੱਛਾ, ना, नहीं होती। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਪਿਓ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹਾਂ, ਕਰਨ, ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हाँ, नहीं होती, नहीं ਮੈਮ कर ਤੁਸੀਂ सकते। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, हाँ, मैं रह रही हूँ बिल्कुल, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ हाँ। ਮਾਡਰਨ ਲੋਕ ਨੇ। बिल्कुल मॉडर्न लोग हैं, लेकिन बेटा बहुत वो ईगो जो आपकी आपस में आती है ना, वो ईगो आपका खराब करती है प्रोग्राम सारा लाइफ का। ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, ईगो चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो, ठीक है, वो ज्ञान जो तुमने हासिल किया है, पढ़ाई जो की है, संस्कार जो लिए वो आपने अपने लिए लिए, किसी दूसरे पे थोप नहीं सकते आप, ठीक है ना, उसकी सोच। और दूसरा ये भी है बेटा, बेशक आपके माँ बाप हैं, बेशक आपके भाई बहन हैं, सोच तो सबकी फर्क है, बिल्कुल। हो ही नहीं सकता कि आपके एक जैसे हों, नहीं हो सकते। फिर आप दूसरे को कैसे आप उम्मीद करो कि वो बिल्कुल ही 100% आपकी उस पे नाक की सीध में चलेगा। बिल्कुल ठीक है, हमारे टाइम में तो हम चल लिए नाक की सीध में, क्योंकि पीछे से माँ बाप का भी वो रहता था जोर का दबाव कि भी आपने शिकायत बेटे कोई नहीं आनी चाहिए, शिकायत बेटे कोई नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी कोई शिकायत नहीं आएगी। तो इतना वो घबराहट में और इतना जिम्मेवारी में वो रहना। हालांकि मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ बहुत अच्छे थे,
ਹਾਂ ਔਰ हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ? हाँ बिल्कुल, मेरी मम्मी ने बहुत कहा शिकायत बेटे नहीं आनी चाहिए, शिकायत कोई नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा ਮਾਂ ਨੂੰ ठीक ਕੀ है। ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ, आप ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ मानोगे ਕਹਿੰਦੀਆਂ नहीं ਨੇ? कि हरियाणा में तो अभी भी शायद है, हालांकि हमारे ससुराल में मुझे नहीं ज़्यादा पता लगा इस बात का कि लड़का अगर आपके पैदा नहीं हुआ तो आपका घर नहीं बसा। जब मेरे पहले बेटी हुई, अच्छा लेकिन मैं बहुत खुश थी कि मेरी बेटी पहले हुई तो बेटी तो होनी चाहिए, एक तो होनी चाहिए। हम्म अच्छा फिर दूसरा बेटा हुआ, हम्म उस दिन मेरी माँ के मुंह से निकला कि आज मेरी लड़की बस गई। अच्छा हाँ, तो ये जो चीज़ थी हम्म ये मुझे बाद में पता लगी और मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा माँ ये सर्टिफिकेट चाहिए था, हैं? ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ हाँ ਬੱਚਾ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, हाँ ਪਰ वो ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੁਣ ਸਹੁਰੇ आज ਘਰ ਵਸ ਜੂਗੀ। बस किया जी। तो ये बहुत अफसोस की बात थी, लेकिन जेठ फिर मतलब ससुर फिर भी अच्छे आदमी थे, अच्छे इंसान थे, सास भी ठीक थी, कभी कोई वो नहीं थी, कमेंट कोई नहीं किया। मैं जब गई तो उनको पता था कि मुझे कुछ नहीं आता, तो मैंने कहा माँ जी मुझे तो कोई खाना बनाना नहीं आता। हम्म बोली बेटी कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता था जब मेरी शादी हुई है मैं सिखाऊंगी सारे काम, हम्म है। तो इतना ही बोलना उनका मुझे बड़ा हौसला हुआ कि भी चलो कम से कम सास तो ऐसे, पर उनको यकीन भी मेरे पे बहुत था, हम्म बहुत अच्छा मानती थी वो। हम्म हम्म तो वही मैं चाह रही हूँ कि लड़के भी जो घबराते हैं, बेटे सोच बिल्कुल क्लियर करके चलो, समझ के, और उस जो भी सोच तुम्हारी हो उसमें ऑप्शंस रखो, 1 2 3 4 5। भाई ये मैंने लाइफ में करना है, ये नहीं हुआ तो ये करना है, ये नहीं हुआ तो ये करना है। ये जो दूसरी तरफ जा रहे हैं ना ये हम्म कि भी सब कुछ खत्म हो गया, वो चीज़ छोड़ दो। ਤੇ कुछ ਜਿਵੇਂ नहीं, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪਲਾਨ ਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ बी ਕੋਲ। भी हो और सी भी हो, कोई ज़रूरी नहीं बेटे। आप इंटेलिजेंट होते हुए, अब हमारी फैमिली में जैसे कई एक आधा लड़का आर्मी में जाना चाह रहा था, हम्म पुलिस में भी जाना चाह रहा था, सिलेक्शन होगी, सब कुछ हो गया, लेकिन जितने उन्होंने रिक्रूट करने थे वो कोटा पूरा हो गया, वो नहीं हो उसका, हम्म तो वो बेचारा हथियार डाल के बैठ गया कि भाई अब तो कुछ करना ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। हम्म तो ये नहीं होना चाहिए। लाइफ में आपके लिए क्या तैयार है आपको कुछ नहीं पता, हम्म आप कम से कम उसको फेस तो करो, बिल्कुल है। आपको खाने पीने को मिल रहा है, माँ बाप ने आपको सारी सपोर्ट दी है, तो फिर आप इतना डिसहार्टन होके क्यों चलो? और क्या आपने एहसान कर दिया उनके ऊपर? माँ बाप से भी जैसे कई दफ़ा कहते हैं कि भाई आपने हमारे लिए किया क्या है? हम्म क्यों भाई तुम्हारे लिए यहाँ तक पहुँचाने के लिए और किसने किया है? हैं? उनको रीपे तो नहीं कर सकते तो कम से कम उनको बुरा तो ना बोलो, बिल्कुल उनके थैंकफुल तो हो कि जो वो करके दिया उन्होंने तुम्हारे लिए, हैं? तुम तो जब करोगे देखी जाएगी, अभी तक तो उन्होंने ही किया है। हाँ, इट्स माई लाइफ। भाई तेरी लाइफ हमारे बिना कैसे हो सकती? तेरी लाइफ हम नहीं होते तो तू कहाँ से होता है? इट्स माई लाइफ। वो झंडा उठा के खड़े हो जाएंगे बिना बात का। हम्म जो शुरू में एक दूसरे को हम इम्प्रेस करने के लिए करते हैं, एक्चुअली में वो चीज़ नहीं होती, असलियत बाद में निकलती है। तो उसको आप सोच समझ के चलो, और जहाँ तक हो उसके फैमिली को इन्वॉल्व करो बीच में, क्योंकि कई चीज़ें माँ बाप जो नोटिस करते हैं बच्चों को नहीं दिखाई देती। बिल्कुल हाँ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, हाँ, तो ਕਿਉਂਕਿ इसलिए ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਲਾਈਫ ਦਾ एक्सपीरियंस ਤਜਰਬਾ, होता है। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, बिल्कुल बिल्कुल ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ जी हुई है, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ बिल्कुल ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ हाँ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ बिल्कुल। ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। तो ईगो को एक साइड में रख के जब भी कोई स्टेप लेते हैं, एक्शन करते हैं, तो उसके बारे में सोचें क्या हम ठीक कर रहे हैं। दूसरे का तो आप बाद में सोचो, पहले अपना तो सोच लो कि क्या तुम एक्शन जो ले रहे हो ठीक कर रहे हो। मतलब एक था वो हमारा रिलेटिव ही था, तो मैंने कहा बेटा तुम ये लड़की 5-6 साल से आ रही, तुम इससे शादी कर लो या इसको मना कर दो। हाँ बोला नहीं मैं अभी सोच रहा हूँ कि ये मेरे लायक है भी कि नहीं है। तो मैंने कहा ये जो सवाल है इस सवाल का जवाब तो तुम्हें नहीं मिलेगा, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ जिंदगी भर ਅਸੀਂ नहीं ਸਹੀ मिलेगा। ਵਿਆਹ ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ हाँ, ਗਲਤ ਚ। और झूठ के बेस पे नहीं चलेगा रिश्ता।
सच पे पे, चलेगा, रिश्ता सच पे हमेशा सच ईमानदारी पे पे चलता। चलेगा तो चलेगा, तो नहीं तो नहीं चलेगा। और ओके। माँ बाप को भी ये सिखाना चाहिए बच्चों को कि जहाँ तक हो सके हम्म। सच बताओ उनको, झूठ पे मत अपना रिश्ता वो करो। हम्म। वो जैसे कई दादा दादी के बारे में बोलते हैं कि बूढ़े लोग आते हैं वो हमारे यहाँ उसमें हम्म। रहते हैं, हमें रोकते हैं 1 डेढ़ महीना, ये मत करो वो मत करो, और फिर वो चले जाते हैं वापस। हैं तो हम्म। बच्चों को ये आपने नहीं बताया कि आपके दादा दादी असली हैं ये भाई, हैं इनमें लाख कमियां हो लेकिन इनमें अच्छाइयाँ भी बहुत, और इनकी वजह से हम यहाँ पे हैं। बहुओं को बिल्कुल। भी ये बात समझनी चाहिए कि भी सास ससुर अगर ठीक ना होते तो हम्म। तुम्हारा हस्बैंड ऐसा नहीं हो सकता था। एक बात मैंने मेरी बेटी को खास तौर से कह के भेजा था, हम्म। जैसे वो लड़कियां माओ को शिकायत करती हैं ना हम्म। कि मेरे हस्बैंड ने ये कहा, मेरे ससुर ने ये कहा, मेरी सास ने ये कहा, तो मैंने उसको एक ही बात बोल के भेजी, बेटा इनकी बुराई करनी हो तो मेरे को फ़ोन मत करना, और कोई अच्छी बात बतानी हो तो मेरे को फ़ोन कर दे। तो घर बसते हैं बेटा, नहीं तो माएँ जो लगी रहती है ना पीछे पीछे, हाँ पुत्र दसी होण की होया, वो आया सी फिर वो की होया, वो आप लड़की के घर में इंटरफेरेंस कर रहे हो। बिल्कुल। हाँ वो और नहीं एक करना सियाणी चाहिए। माँ ये कभी नहीं करती। हाँ नहीं वो नहीं हम्म। करना चाहिए, उसको बचने दो लड़की को। उसको आपने वैल्यूज दे दी कि बेटा ये अच्छी है ये बुरी है, उसके बाद उसको फैसला करने दो, उसका हम्म। घर उसको चलाने दो। मेरी बेटी वहाँ रह रही थी, जैसे अमेरिका में थी, तो उसके पहला बच्चा हुआ तो वो जॉब कर रही थी मैरीलैंड में, हम्म। अच्छे पैसे कमा रही थी। तो मैंने कहा बेटे जॉब छोड़ देनी चाहिए अगर बच्चे पैदा करने हैं तो। तुसी अपनी बेटी नु क्या? हाँ मैंने कहा बच्चे नहीं पलेंगे बिना उसके। कि नहीं यहाँ पे एक आंटी हैं इंडिया से हैं, वो बहुत अच्छे पालती हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। हम्म। मैंने कहा बेटा कोई आंटी हो माँ जैसा कोई नहीं कर सकती। तो कि नहीं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम्म। तो मैं वहाँ रही जैसे 15 दिन, तो उसने आंटी ने बताया कि कविता तेरी लड़की जो है ना जब तक तू नहीं आती है रोती रहती है। अच्छा। हाँ मैंने कहा बोल बेटा अब क्या करेगी। तो फिर उसने जॉब छोड़ी, बड़ा हम्म। चोंच रप्पा तो किया, बोली कि 17 साल मुझे बिना उसके काम के रहना पड़ेगा, ऐसे कैसे होगा। मैं क्या ऐसे कैसे, शादी हुई है तो बच्चे पैदा करने के नहीं करने, अगर करने हैं तो जॉब छोड़नी पड़ेगी। मैं कहा उससे बात कर ले तेरे हस्बैंड से हम्म। कि बोल भाई क्या कहता है। उसने कहा ठीक है जो मैं कमा रहा हूँ अपने दोनों का है वो, और जॉब छोड़ दो तो अच्छा। तुम घर संभालो मैं बाहर संभालता। तो बड़ा अच्छा संभाला, उसने भी संभाला उसने भी संभाला, बच्चे पल गए, आज वो बढ़िया लाइफ लीड कर रहे हैं। हम्म। तो सेक्रीफाइस तो बेटे एक ना एक को तो करना ही पड़ता है। और मेरे ख्याल में माँ करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि माँ की 6 सेंस होती है ना, तो वो हम्म। बहुत कुछ जान जाती है हम्म। कि भी ये ठीक है ये गलत है ये वो चाहिए। आदमी ठीक है बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वो इतने वर्ल्डली वाइज नहीं होते। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ हाँ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ होते। ਆਉਣੀ नहीं ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। हाँ बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो वो फैसला नहीं कर सकते। हम्म। तो ये जो कहते हैं ना भाई अब तू कर और मैं करूँ, भाई कुछ चीज़ें तो ठीक है वो करना चाहिए, उसको कर भी लेगा, किचन में हम्म। हेल्प करवाने का वो कर देगा, लेकिन बच्चों वाली चीज़ें माँ को ही ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ करनी ਚਾਹੀਦੀਆਂ चाहिए। ਹੈ। उससे आपका घर बंधा रहेगा, वरना घर आपका उखड़ा रहेगा। घर घर बंधा चाहिए कि उखड़ा चाहिए वो आप पे फैसला करें। और झूठ के बेस पे जो घर आप बनाओगे वो कभी भी नहीं चलेगा।